یہ تو ڈھیریاں ہیں. اس غلط فہمی کو، اس جاہلانہ سوچ کو واضح اور عیاں کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی درست ہے کہ جس پہ موت آ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ مٹی میں مل جاتا ہے؟ کیا اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے؟ یا معاملہ اس سے الٹ ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اللہ کے قرآن سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موت صرف انسان پر نہیں آتی، موت ہر چیز پہ آتی ہے. اور موت کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے. بعض چیزیں موجود ہوتی ہیں، سامنے ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں موت آ گئی ہے. اب قرآن مجید کو آپ اور ہم جب کھولتے ہیں تو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہمیں موت کے کئی مفہوم، کئی معنی بتاتا ہے. میں قرآن اور قرآن کی لغت کو آسرا اور سہارا بنا کر آپ کے اور اپنے ایمان کی جلا کے لیے، تاکہ ایمان مضبوط رہے، کوئی ڈاکو نہ رات کو ڈاکہ ڈال سکے نہ دن کو ڈاکہ ڈال سکے، ایمان سلامت رہے. اللہ اکبر. تو دوستو عرض یہ ہے کہ موت کیا ہے، موت کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی صورتیں زندگی کی ہیں اتنی صورتیں موت کی بھی ہیں. اب اس کو یوں سمجھیں کہ ایک زندگی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، یہ ایک زندگی کا ایک روپ ہے کہ خلیل اللہ کی زندگی یہ بھی ایک زندگی کا روپ ہے. اور ایک ہے نمرود کی زندگی، یہ بھی زندگی کا ایک روپ اور رنگ ہے. ایک ہے موسیٰ کلیم کی زندگی، یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے. اور ایک ہے فرعون کی زندگی. کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ کیا دونوں کا چلن ایک جیسا ہے؟ فرعون کی زندگی اور ہے، موسیٰ کی زندگی اور ہے. اسی طرح آگے چلتے جاؤ. ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی. ایک ہے ابو جہل کی زندگی. زندگیاں دونوں کے پاس ہیں، لیکن محمد عربی کی حیات اور ہے، ساری کائنات اور ہے. اس سے آگے ایک ہے یزید کی زندگی، ایک ہے حسین کی زندگی. کوئی پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے. اور اس سے آگے چلتے چلیں، ایک ہے کافر کی زندگی، ایک ہے مومن کی زندگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک منکر خدا ہو اور ایک ہر وقت پڑھتا لا الہ ہو، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک غدار کی زندگی، ایک ہے وفادار کی زندگی. ایک ہے بیگانے کی زندگی، ایک ہے یار کی زندگی. تو جیسے ان کی زندگیوں میں جتنا جتنا فرق ہے اتنا اتنا ان کی موت میں بھی فرق ہے. یہ آسان طریقہ سمجھنے کا. اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ تفریق میں نے نہیں کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ام حاسب الذی نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साआ मा यहकुमून। अल्लाह फरमाता है लोगों ने ये समझ रखा है कि जो लोग अल्लाह से बेवफाई करेंगे, अल्लाह से गद्दारी करेंगे, क्या वो लोग और वो लोग जिन्होंने अल्लाह से वफा की, उसके रसूल की गुलामी की, जिन्होंने ईमान को अपना जेवर बनाया, आमाल सालेहा को अपनी जिंदगी में सजाया, फरमाया सवाअ महयाहुम व ममातुहुम, क्या इन दोनों की जिंदगी और मौत बराबर होगी? आगे अल्लाह फरमाता है साआ मा यहकुमून, जिसने ये सोचा है उसने बुरा सोचा है। ये फरमाने खुदा ताला है कि जिसने इन दोनों को बराबर समझा है उसने बुरा समझा है। तो क्या समझा? फरमाया समझो ये कि जो गद्दार है और उसकी जिंदगी भी अलग है, उसकी मौत भी अलग है। ये कुरान है। अब इसके बाद इसी अल्लाह के पाक कुरान से ये समझने की कोशिश करें कि मौत कुरान मजीद में कितने मानू में ये मौत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कितने मफहूम इस मौत के लफ्ज के ज़िमन में कुरान मजीद में छुपे हुए हैं। सबसे पहले फरमाया कि जवाल कुव्वते नामिया, ये अरबी का लफ्ज है कि जब किसी चीज में बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाए। तुसी सुते हो कि जागदे हो? अल्लाह अब ये गौर फिक्र से समझने वाली चीजें हैं। जब किसी चीज में बढ़ने की सलाहियत खत्म हो जाए, मसलन जमीन है, उसको लग गया सेम, उसको लग गया थोर, उसको पड़ गया शोर, मुक गया उसका जोर, एदी जिंदगी हो गई होर। समझ आई? जमीन है, बिल्कुल पानी भी लगाते हैं, बीज भी डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, मगर जितना भी डाला एक तीला बाहर नहीं निकला। क्यों? जमीन को सेम लग गया है, जमीन को थोर लग गया है, जमीन को शोर लग गया है। अब आप कहते हैं कि जमीन सेम ज़दा हो गई, जमीन को थोर लग गया। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, जमीन को मौत आ गई है। क्या हुआ? जमीन को अब मौत, हम तो समझते थे हम ही मरते हैं, पता चला ये मुरब्बे भी मर जाते हैं, ये एकड़ भी मर जाते हैं। अब कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है युह्यिल अंज़लना मिनस समाए माअन फअहयना बिही बलदतम मैता। फरमाया हमने आसमान से पानी बरसाया और उस बारिश के पानी से मुर्दा जमीन को जिंदा फरमाया। पता चला कि मौत जमीन को भी आती है। अब उस मौत की शक्ल क्या है कि जमीन आबादी देना छोड़ जाती है। तीले तीले को किसान तरसता है, न बीज काम आता है, न खाद काम आती है। जब जमीन मर जाती है तो कुरान की आयत ये बताती है कि जमीन पे भी मौत, एक पहला माना। दूसरा माना जवाल कुव्वत हादसा, जब एहसास की कुव्वतें खत्म हो जाएं तो उस वक्त भी कहते हैं, हम कहते हैं बंदा मफलूज हो गया, इसको फालिज पड़ गया है। कुरान कहता नहीं, इसको भी मौत आ गई है।
इसको भी मौत आ गई है। वो किस तरह? आप जाएं इधर हमारे किबला डॉक्टर रफी साहब के पास, अब वो कहते हैं कि तुम्हारी उंगली का ऑपरेशन होगा। अब उंगली का ऑपरेशन होगा तो आप तो डर जाएंगे कि उंगली का ऑपरेशन होगा तो मैं तो इतना दर्द सह नहीं सकता। उन्होंने कहा एक टीका लगाऊंगा, इसको कर दूंगा हाथ को सुन्न, फिर जैसे मर्जी आएगी मैं काटूंगा, इसे चीरूंगा, फाड़ूंगा। वही हुआ। उन्होंने लगाया सुन्न करने का टीका, हाथ हो गया सुन्न। अब उन्होंने आराम से बैठ के काटा, बीच में से जो दिल चाहा निकाला, आपको पता ही ना चला। आपने कहा सुन्न हो गई चीज, कुरान ने कहा ये हाथ पे मौत आ गई है, क्योंकि एहसास की कुव्वत खत्म हो गई है। इसको कहते हैं या लैतनी मित्तु कबला हाजा व कुन्तु नसिया मनसिया। हजरत मरियम रोई, आए काश। जाहिर है बच्चा जब पैदा होता है मां पे क्यामत टूट जाती है, और वो मां ना मां सर पे, ना बहन सर पे, ना कोई डॉक्टर सर पे, और कौम का डर भी सर पे कि कुंवारी बच्चा जन्म दे रही है, खो में पड़ी है। जमाने का डर, दुनिया की मलामत का डर, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना सहारा देने वाला। तो बीबी मरियम की चीख निकली, या लैतनी मित्तो कबला हाजा। हाय काश के मेरे ऊपर ऐसा फालिज गिरता कि मैं बेहिस होती, दर्द का एहसास ना होता। तो ये भी मौत की एक शक्ल है। कुरान ने इसको भी क्या कहा? मौत। तीसरा माना जवाल कुव्वते आकिला। बंदा जिंदा है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, लड़ता भी है, देखता भी है, लेकिन समझने की कुव्वत खत्म हो गई। क्या? समझने की कुव्वत खत्म हो गई। हक को कबूल करने की कुव्वत खत्म हो गई। कुरान ने कहा इन्ना का ला तुस्मिउल मौता, मेरा नबी तू इन मुर्दों को नहीं सुना सकता। जितना भी जोर लगा, या अल्लाह ये अबू जहल मुर्दा है, फरमाया तुम्हारे नजदीक जिंदा है, मेरे नजदीक मुर्दा है। अबू लहब भी मुर्दा है, अबू जहल भी मुर्दा है, इतने तकड़े ताजे फिर मुर्दा। फरमाया ये हक समझ नहीं पा रहे, जो हक को ना समझे दुनिया के लिए जिंदा है, कुरान कहता है मुर्दा।